Good evening, everyone. Myself, C. Raj Chawla. Welcome you all in this today webinar on funding for MSME. And today we have with us expert in financing, C. S. Sachin Darganji. So he will give us the input and the procedure details to please start his deliberation. Over to Sachinji. Thank you, Raj sir. Thank you so much. That has everybody knows that the definition was micro, small, and medium. And for manufacturing, it was different, and for service enterprises, it was different. It was 25 up to 25 lakh rupees investment. So there were two types of criterias for MSME classification. One, that you have an investment in a gross block of fixed assets. That was 25 lakh rupees for micro, 5 crores up to 5 crore for small, and up to 10 CR for medium enterprises. And for service enterprises, it was 10 lakhs, 2 CR and 5 CR respectively, micro, small and medium. Because the the MSME is growing over a period of time. So government also felt sometimes that now the limit should be increased, because they organizations were surpassing these limits. But now, because they are the backbone of our GDP and our economy, their definition should also be widened. So now the criteria they have come up, the criteria which they have come up is with investment as well as turnover. So the turnover it is a combined criteria. Investment should be less than 1 CR and turnover should be less than 5 CR. Then small, it's 10 CR in investments in gross block and turnover is 50 CR. And then medium enterprises investment, you can see, just hold on. I think now you can see that it's 50 CR and then turnover is 250 CR. Now, again, from this fiscal year, they have again revised this criteria, and that has been increased up to 500 CR. 500 करोड़ तक की टर्नओवर के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, they would be covered under MSME, provided उनकी investment in plant and machinery should be less than 125 CR. So I think that is a big booster for every, I would say, ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज जितने ज्यादा कवर होंगे एमएसएमई में, उतने बेनिफिट्स जो एमएसएमई को मिलते हैं वो मिलेंगे। अभी मैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स या बेनिफिट्स की बात नहीं करूंगा इस जो पीपीटी में, बिकॉज दैट आई हैव ऑलरेडी स्पोकन मल्टीपल टाइम्स एंड गोइंग फॉरवर्ड आई विल आल्सो स्पीक। अभी मेरा जो रेस्ट्रिक्शन रहेगा अपनी पीपीटी में, जो आपका ये 1.5 आवर का सेशन है, दैट विल बी प्योरली फंडिंग ऑफ एमएसएमईज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, अदर ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम प्राइवेट बैंक्स जनरली। बिकॉज हम लोग अभी क्या बात करते हैं, सिर्फ बात ये करा जाता है कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स दिए हैं। गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री योजना निकाली है, मुद्रा योजना है, फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हैं, बट दे आर जनरली लिमिटेड टू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत ज्यादा इसमें एक्टिव नहीं हैं। और हम लोग जितने भी एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हमारे पास क्वेश्चंस यही आते हैं कि कितने हमारा क्लाइंट कोई अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट मांग रहा है जो कि राजीव गांधी में कवर होती है या प्रधानमंत्री योजना में कवर होती है। सो कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बट थोड़ा टाइम टेकिंग है। जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है, एंड दिस इज समथिंग विच वी कैन डू फॉर आवर क्लाइंट इन अ जिफी। ये चीजें हम प्राइवेट बैंक से, बिकॉज हम लोगों को नॉलेज नहीं है, सो वी आर द वन हु डील्स विद
all these banks and institutions, majorly private as well as public sector undertakings, and get the funding arranged for the clients. So Udyam registration, as we know, it's basically signifies the MSME. जिस organization के पास उद्यम certificate होगा, that particular organization will be classified as MSME. And MSME is nothing but a priority sector. So priority sector, I guess सबको पता है, जहां पर banks have been advised by RBI to fund at least 40% of their adjusted net worth in the प्रायोरिटी सेक्टर। तो कहीं ना कहीं एमएसएमई को लोन देने के लिए बैंक्स अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम करते हैं, अपनी पॉलिसीज चेंज करते हैं, बहुत स्मूदन होती हैं, जो कि आजकल के टाइम में कई लोग, अगर कोई आपका कोई भी क्लाइंट है या आप एज अ सीए किसी भी बैंक को अप्रोच करते हैं, तो जो बैंक अपने आपके क्लाइंट का है उसके अलावा कोई और बैंक इसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। वहां एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट बिग पॉकेट आपको काम आएगा। अगेन आई एम कमिंग बैक टू उद्यम रजिस्ट्रेशन। So it's a simple registration. It's a 5 minutes process. Everybody knows. Everybody must be having their MSMEs registered under this. Then this is a sample Udyam registration certificate, which classifies whether it is a small, medium, or micro enterprises, depending upon the turnover as well as the investment criteria which we discussed initially. And here I have shown the segregation of micro, small, and medium enterprises. Total of approximately 6.5 CR MSMEs are there in India. That was in 31st March 24. Now that has been increased by 1 CR also. So year on year ये नंबर्स बढ़ता जा रहा है। वो इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज हमने अपनी डेफिनेशन ही गवर्नमेंट ने चेंज कर दी है एमएसएमईज की। ये जो 31st March 24 का डेटा आप देख रहे हैं, आई थिंक नाउ इट विल इंक्रीज फर्दर बिकॉज फ्रॉम 1st of April 25 दिस डेफिनेशन अगेन forms 39 million, which is almost 97%. Then small is 1.5%, and then medium enterprises 0.8% only. And then as per Ministry of Finance, the out of total 4 CR units, total 4 CR of enterprises, 1.36 units are रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटीआई। सो आई थिंक जीएसटी का भी काफी स्कोप है यहाँ पर। कितनी यूनिट्स ने जीएसटीआई नहीं लिया हुआ, जीएसटी मेंबर्स नहीं लिए हुए हैं अपने। सो आई थिंक ये एक अपना सीएस के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है दैट दे शुड गेट देयर units registered, their clients units registered under GSTN। देन सो इस स्लाइड का पर्पस सिर्फ इतना है दिखाने का कि आपके पास अभी इतना स्कोप है एमएसएमई में काम करने का, और एमएसएमई नीड्स फंडिंग। तो कहीं ना कहीं वो फंडिंग एज अ सीए लैक करते हैं, जहां पर वो ऑडिटर या उनकी टैक्सेशन रिक्वायरमेंट देख रहे हैं, बट यू आर द वन जो आपकी उनकी फंडिंग रिक्वायरमेंट्स भी देख सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग स्ट्रेट अवे टू द बैंक फंडिंग टू एमएसएमईज, कि क्या क्या फंडिंग जो एक पर्टिकुलरली प्राइवेट बैंक्स फंडिंग करते हैं, लाइक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वर्किंग कैपिटल लिमिट। सो दीज आर सिक्योर्ड और सेग्रीगेटेड इन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में जहां आप अपना एक कोलैटरल पार्ट दे रहे हैं, वो कोलैटरल 100% भी हो सकता है, वो कोलैटरल 25% भी हो सकता है इन अ, बट दैट वुड बी कॉल्ड एज अ सिक्योर्ड फंडिंग, which is loan against property, working capital limits, big ticket home loans। कितने ऐसे प्रमोटर्स हैं जिनको अपना घर लेने के लिए जस्टिफाई करना पड़ता है दैट दे हैव, बिकॉज दे डू नॉट ड्रॉ एनी सैलरी, मच सैलरी फ्रॉम द कंपनी, बट स्टिल दे वांट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। then banks can give them home loan also basis their organizations or companies financials। then it comes as then project funding comes। So project funding is basically a funding where a new project is installed by any client। that project may be a greenfield project, जहां पर आपको सब कुछ नए सिरे से काम करना है, और it's altogether a different setup and it's a new setup।
एंड देयर में भी ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स जहां पर एक एग्जिस्टिंग कंपनी काम कर रही है, नाउ दैट कंपनी वांट्स टू एक्सपैंड इन द सेम एरिया, ईदर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और इनटू बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो वहां पर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स काम आते हैं। देन देर देर आर लोन्स विच आर प्योरली अनसिक्योर्ड। सो अनसिक्योर्ड का मतलब जहां पर आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी है, द ओनली सिक्योरिटी विच यू विल गिव इज पर्सनल गारंटी, पर्सनल गारंटी ऑफ द प्रमोटर्स। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी बैलेंस शीट देखी जाती है। तो इट्स वी कॉल इट, सो दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लोन्स। वन इज अनसिक्योर्ड बिजनेस इंस्टॉलमेंट लोन, जहां पर हम उनको एक इंस्टॉलमेंट्स बना देते हैं लोन की, एंड दैट लोन विल लास्ट फॉर ओनली 36 months। Then there are limits also which are given unsecured CGTMSE। मैं इसके ऊपर आऊंगा। आई थिंक लॉट मेनी नोज अबाउट CGTMSE, वी हैव हर्ड ऑल्सो, बट वो करवा नहीं पाते हैं क्लाइंट्स का। वो एक चीज उसमें डिस्कस करेंगे। देन मशीनरी लोन्स। सो मशीनरी लोन्स, सिंपल द नेम सिग्निफाइज कि मशीनरी को परचेज करने के लिए जो लोन लिया जाएगा वो मशीनरी लोन होगा। तो ये देखा जाए तो अनसिक्योर्ड है, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं। बट देखा इसमें वैसे देखें तो ये मशीनरी इटसेल्फ इज अ प्रॉपर्टी गिवन टू द बैंक। सो उस सेंस में ये सिक्योर्ड लोन बन जाता है। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं जो हम लोगों को आते हैं बैंक्स के साथ, पर्टिकुलरली रिलेशनशिप मैनेजर इश्यूज आते हैं कई। जितने भी हमारे बैंक के relationship manager which are tagged to be have some, you know, changes from the sales team only. They only, work only for then of knowledge which we have seen as a financial consultant. So we have also, we have a team of almost 70 people there in our office, and we maximum of us are chartered accountants only, worked in banks initially. But we have observed that lot many relationship managers, or we would say the sales managers, do not have the requisite knowledge about their products। उनको अपने प्रोडक्ट्स की इतनी नॉलेज नहीं है, सो दे डू नॉट, इनफैक्ट दे डू नॉट कम्युनिकेट। आप उसे फोन करेंगे, प्रोबेबली समटाइम्स दे विल पिक अप, समटाइम्स दे विल नॉट। देन द एक जो और इशू मेजरली आते हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक, कि कई कई ऐसे बैंक्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वन ऑफ योर क्लाइंट इज इन HDFC, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। अब HDFC बैंक में क्लाइंट काम बैंकिंग कर रहे हैं, दे वांट सम अदर प्रोडक्ट्स आल्सो, लाइक दे आर स्टार्टिंग एनी ज्वेलरी बिजनेस। नाउ HDFC supposedly do not fund to any jewelry, then in that case ज्वेलरी सेगमेंट में वो, उनको ये नहीं पता होगा कि किस बैंक के पास जाके इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फिलफिल किया जाए। सो इन दैट केस पर्टिकुलर फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स ओनली कम्स इनटू पिक्चर, एंड दे नो बिकॉज व्हाट which bank is doing what। then the other specific issues, most of the banks don't have any CGTMSE products। कितने ऐसे बैंक्स हैं हमें नहीं पता है कि CGTMSE कौन सा बैंक कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। प्राइवेट बैंक्स जनरली प्रोजेक्ट फंडिंग करते हैं, बट वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट फंडिंग नहीं करते हैं, दे ओनली डू ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। कुछ बैंक्स के पास सरोगेट प्रोडक्ट्स हैं, मैं इसके ऊपर आऊंगा। सरोगेट प्रोडक्ट्स होते क्या हैं, ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं, बिकॉज जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि दैट दीज आर द थिंग्स विच आर एक्चुअली हैपनिंग और लोन मिल रहे हैं, तब आपका, तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे। तो सो फॉर दैट टू अंडरस्टैंड आपको प्रोडक्ट्स जानने जरूरी हैं। देन सम ऑफ द इश्यूज विच क्लाइंट्स फेस आर पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज। कुछ बैंक्स की पॉलिसी इतनी स्ट्रिंजेंट है, दे वांट डेट टू इक्विटी रेशियो इन दैट सेंस। then they do not, some of the banks do not consider projections after a certain limit। किसी किसी बैंक्स में रिटेल सेगमेंट और कमर्शियल सेगमेंट आपस में बात नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट inclined with each other। सपोज एक क्लाइंट, one of your client has surpassed a specified turnover of say 100 CR, and now the bank has the policy that they will be considered as an they will have to go to a commercial segment। Then in that case retail segment is not speaking to the commercial segment, and retail wants that client should be
should remain with them rather than they would be sending it to the commercial segment, क्योंकि उनका रेवेन्यू सोर्स है वो। तो ये सारी चीजें एक एक्सटर्नल एजेंसी ही समझ सकती है और गाइड कर सकती है, एडवाइस कर सकती है। कई बैंक्स आपने देखा होगा इंश्योरेंस, बिना इंश्योरेंस के बात नहीं करते हैं। दे नीड सम इंश्योरेंस बिकॉज दे हैव देयर ओन टारगेट्स। द बैंक्स चार्ज हाइयर रेट, सम ऑफ द बैंक्स चार्ज लोअर रेट। तो दीज आर द थिंग्स विच ओनली स्पेशलिस्ट नोज। देन अगेन मैंने इसको थोड़ा सा और ब्रीफली इसको डिटेल में लिखा है अबाउट द चैलेंजेस ओनली। कुछ ऑपरेशनल रिलेटेड चैलेंजेस होते हैं कि सैंक्शन होने के बाद भी डिसबर्समेंट को टाइम लगता है। डिसबर्समेंट होने के बाद दे हैव सम मोर कंडीशंस। दे आर नॉट वेल इक्विप्ड अबाउट द ट्रेड फाइनेंस, ट्रेड रिलेटेड इश्यूज। कुछ कुछ क्लाइंट्स हैं जो आपकी ट्रेड लिमिट्स यूज करते हैं, जैसे एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट हुआ, बायस क्रेडिट हो गया, या एक्सपोर्ट की पैकिंग क्रेडिट। बैंक्स के रिसोर्स, बैंक्स के पास प्रोडक्ट्स हैं बट बैंक्स के पास रिसोर्सेज नहीं है। द वो पीपल नहीं है जो दे अंडरस्टैंड अबाउट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। देन टैट उनका इतना लंबा हो जाता है, टैट इज टर्न अराउंड टाइम। 2 से 3 महीने लग जाएंगे एक वर्किंग कैपिटल की ट्रांजेक्शन को निकालते हुए। Now, what are the solutions? Solutions to these funding challenges. One, a banking partner has to be there. On, as I said, एक एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है ताकि वो इन चीजों को समझ सके और एक अच्छे से एमएसएमई को गाइड कर सके। सो हम लोग इधर जो बिग पॉकेट में यही सारी चीजें करते हैं, एंड वी ओनली गिव, आई वुड से, सॉल्यूशन टू द क्लाइंट्स रादर देन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट दे दिया। हम लोग उसके कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाते हैं उसके हिसाब से। वी कैन कॉल इट टेलर्ड सॉल्यूशंस। हम किसी भी अगर किसी भी बैंक में जाएंगे, हर बैंक के अपने अलग अलग पॉलिसीज हैं, अलग क्लाइंटेज है। सो नो सिंगल क्लाइंट कैन फिट इन अ सिंगल बैंक, रादर ही और शी विल हैव टू गो टू डिफरेंट बैंक्स टू अंडरस्टैंड। वो हम लोग अपनी यहाँ अपने, सो एवरीबडी नोज अबाउट दिस, एंड हम लोग वो सजेस्ट कर सकते हैं कौन सा बैंक कहाँ फिट कर बैठेगा। देन वी हैव मल्टीपल रेंज अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यू विल हैव टू कम टू अस एंड वी विल रिजॉल्व ईच एंड एवरी प्रोडक्ट इशू ऑफ द बैंक्स, राइट। एंड देन ऑब्वियसली कहने की बात नहीं है कि हमें जो नेगोशिएशन रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम कर सकते हैं एज अ कॉर्पोरेट कंसल्टेंट फॉर बैंक्स, बिकॉज वी आर एम्पैनल्ड विद देम, वो कोई और नहीं कर सकता है। सो कमिंग ऑन टू द प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, आई थिंक ये सबसे जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जहां हर बंदा सोचेगा कि अब हमें क्या फायदा, हम कैसे इसमें आगे रेवेन्यू आएगा या वो। सो फर्स्ट थिंग, एडिशनल लाइन ऑफ रेवेन्यू, बिकॉज वी कोलैबोरेट विद चार्टेड अकाउंटेंट्स। हम उनके साथ अपनी रेवेन्यू शेयरिंग करते हैं, राइट। It's a regular stream of revenue. Suppose if you, I mean, you have offered, you have referred one client and he is asking for product X, right? Then in you, after say 1 years down the line, if somebody is asking for product Y also, then also you will be informed about this. So it's a regular stream of revenue. It's not our client, it would be your client only, but their banking needs, we would be your partner for their banking needs, right? देन इट्स अ वाइडर नॉलेज। जैसे जैसे हम आपके क्लाइंट्स की बैंकिंग नीड्स पूरी करेंगे, वैसे वैसे यू विल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट द बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड विच बैंक डज व्हाट। सो कहीं ना कहीं आपको अपनी नॉलेज में भी बेनिफिट मिलेगा। तो देन सो वी कैन से, सो कैसे वो हम कर सकते हैं, इधर हम लोग आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी एग्जिस्टिंग लोन को टॉप अप दे सकते हैं, एनहांसमेंट इन देयर एग्जिस्टिंग लोन, एंड एनी, so other charging higher rate of interest can be transferred to another bank with lower rate of interest and higher limits or higher loan। तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट आपके क्लाइंट को होगा, और वो क्लाइंट को बेनिफिट अलग होगा। एट द सेम टाइम आपको, आप, बिकॉज दे विल ऑल्सो गिव यू importance, because now you are not only doing their traditional audit and taxation work, rather you are also coming
फोर्थ एंड गिविंग देम सॉल्यूशंस। और कहीं ना कहीं आपका क्लाइंट आपके ऊपर ज्यादा कंफर्टेबल होगा गिविंग टू यू their file for any loan or limits rather than giving to any other person. देन फ्रेश लोन्स कैन ऑल्सो बी गिवन। किसी भी क्लाइंट को कहीं इंडस्ट्री लगानी है, उसको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए, उसको वर्किंग कैपिटल चाहिए, देन यू आर वन स्टॉप शॉप। देन बैंकिंग सर्विसेज, ओके, दिस इज व्हाट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हम लोग सिर्फ लोन नहीं करवाते हैं, हम लोग उसकी लोन या लिमिट में करवाने के बाद भी जो सर्विसेज होती हैं बैंकिंग की, वो देते हैं। सो वी आर बेसिकली अ बैंकिंग, आई कैन से दैट वी आर बैंकर फॉर आवर क्लाइंट्स एंड वी वुड बी द वर्चुअल बैंकर फॉर देम। अब क्लाइंट को बैंक से बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है। वी विल हैंडल एवरीथिंग फॉर द क्लाइंट। सो लास्ट लाइन, लास्ट जो पॉइंट है उसमें यह है कि ये क्योंकि क्लाइंट्स सब चीजें एक जगह आ जाएंगी, देन इट वुड बी अ स्टिकीनेस फॉर क्लाइंट्स। क्लाइंट्स कहीं ना कहीं आपके साथ रुकेगा, वो कहीं इधर उधर मूव नहीं होगा। देन आई एम कमिंग ऑन द व्हाट आर ऑल द प्रोडक्ट्स विच वी डील इन। पहला तो है वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट्स, वर्किंग कैपिटल लिमिट्स। सो Anupma ma'am, do we have any questions or anything if I can discuss, because probably मैं बोल रहा हूँ and somebody may not feel it may be monotonous also। तो अगर आपको लगता है कि कोई questions है, I can address those questions. So I have with me my team member Vikas also. Vikas, if you have anything comes up to you, you can ask. या हाय सिस्टर। एक क्वेश्चन है, मतलब ये जो एमएसएमई की जो फंडिंग हम लोग मतलब रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली क्लाइंट्स की, तो कितनी फ्रीक्वेंटली वो केटर करी जाती है लाइक बैंक से आपके थ्रू, लाइक ज़्यादातर बैंक्स प्रेफर करते हैं कि सिक्योर फंडिंग की तरफ ज़्यादा प्रैक्टिकली वो फॉलो करते हैं, तो वो उसमें आप किस तरीके से हेल्प करते हैं लाइक। So you are saying that clients are more inclined for secured funding rather than unsecured funding, ऐसा क्या? यस यस, जैसे कि स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं वो भी कोलेटरल देने के लिए नहीं होता, बट ज़्यादातर वो एमएसएमई की तरफ मतलब जो सीजीडीएमएसई की तरफ फोकस करते हैं कि वहाँ से कुछ सपोर्ट हो जाए, बट वो प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल होता है मतलब स्टार्टअप्स के लिए। तो आई टेल यू, जो स्टार्टअप्स हैं, जनरली ये क्वेश्चन कई सोच ही रहे होंगे। ये जो स्टार्टअप्स हैं, ये इट इज वेरी इजी टू से कि स्टार्टअप फंडिंग 10 करोड़, अभी शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 10 CR से 20 CR भी किया है स्टार्टअप इंडिया के तहत। बट कहीं ना कहीं अभी भी सिस्टम और ऑपरेशनल इश्यूज हैं जो स्टार्टअप को एक फंडिंग में रोकते हैं। इफ यू विल सी, अगर हम बात करते हैं डेट फंडिंग की, जो बैंक देते हैं डेट, तो वो विज इफ वी टॉक अबाउट प्राइवेट इक्विटी फंडिंग फॉर स्टार्टअप्स, आई थिंक आज की डेट में जो प्राइवेट इक्विटी है, जो डाइल्यूशन है स्टार्टअप का, वो इजी है रादर देन गिविंग देम अ स्टार्टअप फंडिंग थ्रू डेट। बिकॉज वी हैव लॉट मेनी कॉवेनेंट्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है, दे हैव रिटन द पॉलिसीज, देख आपको ये होना चाहिए। बट अगेन हमारे जो जो उद्यमी भाई हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी जितने भी टर्नओवर है या जो प्रॉफिट मैं बताऊं बात करूंगा, वो उतना नहीं दिखाना चाहते हैं जितना उनको एक्चुअली में दिखाना चाहिए, जितना एक्चुअल होता है। बट वो उस केस में वो उस स्टार्टअप फंडिंग में इतना एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप 1 साल से 10 साल तक रहता है, राइट, एवरीबॉडी नोज। तो स्टार्टअप इंडिया में ना जाके अगर हम वो 3 साल का कोई अपना क्लाइंट उठाते हैं जिनको लोन चाहिए, हम सिक्योर फंडिंग फ्रॉम वेरियस बैंक्स, वी कैन गेट इट डन। वो वन शॉट में हम आपको 5 7 10 करोड़ जितने, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट एंड द टर्नओवर ऑफ द दैट पर्टिकुलर कंपनी, वी कैन गेट इट अरेंज। इसमें आपको शायद 8 दिन से 10 दिन का टाइम लगता है हम लोगों को। जो हम प्राइवेट बैंक्स, जो प्राइवेट बैंक्स व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, मतलब जो इंडियन प्राइवेट बैंक्स हैं जैसे एचडीएफसी,
कोटेक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, डॉयशे बैंक, इन सब से हम लोग वी हैव आवर एग्रीमेंट्स, जहां पर वो हमें हमें उनको एक पर्टिकुलर सिस्टम में उनकी एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस डालना होता है, पूरा एक एलिजिबिलिटी निकाल के देना होता है, एंड बेसिस दैट दे मीट द क्लाइंट एंड दे सैंक्शन द लोन इन अ स्पैन ऑफ 7 days। तो जहां लोन हमारा 7 से 10 दिन में हो रहा है, और वो लोन भी छोटा मोटा नहीं, 8 से 10 करोड़ तक का भी हम अनसिक्योर्ड लोन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको, सो मैंने यहाँ पर अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन की स्लाइड में आ गया हूँ सीधा, बिकॉज विकास का क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था। तो कहीं ना कहीं हम इसमें एक फायदा ये रहता है कि आपको विद इन स्पैन ऑफ 10 to 12 वर्किंग डेज आपको ये सारा डिसबर्स हो जाएगा। दूसरा, आपका जो ये लोन होगा, ये सिर्फ 24 मंथ्स या 36 मंथ्स के लिए होगा। तो जहां पर, बिकॉज अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन हमेशा हायर रेट पर होता है एज कंपेयर टू द सिक्योर्ड लोन्स। तो जहां जहां पर सिक्योर्ड लोन विल वेरी अराउंड 9 to 9.5%, सिक्योर्ड बिजनेस लोन्स आई एम टॉकिंग अबाउट, वहीं जो अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन है वो 15 से 18% के बीच में मिलते हैं। बट देन दिस इज, जो भी जो जो जितने भी सीए हैं या जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने ये अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन यूज किया है प्रोडक्ट, ये कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि इसमें बहुत ज्यादा ईएमआई नहीं होती है। आई मीन टू से, अगर 1 करोड़ का कोई लोन ले रहा है तो वी विल हैव टू रीपे 1 करोड़ 24 लाख रुपीज आफ्टर स्पैन ऑफ 3 years, विद इन स्पैन ऑफ 3 years। सो 3 साल की ईएमआई बनेगी, उसमें आप सिर्फ 24 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो 3 साल में, दैट मीन्स 8 लाख रुपीज इन अ ईयर। तो इस, और क्लाइंट्स जिसको भी क्विक मनी की जरूरत होती है, वो हमेशा क्लाइंट ये यूज करता ही करता है। And moreover, we have agreements with some of the banks जो practicing chartered accountants को यही लोन 10.5 और 11% में देते हैं, which is unsecured, up to amount of 60 to 70 लाख रुपीज, राइट। तो अगर किसी भी सीए भाई को अपना अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन चाहिए तो वो शायद 5-6% कम ही मिलेगा, विच इज एज गुड एज सिक्योर्ड लोन फॉर नॉर्मल पर्सन। देन इसकी आरओई थोड़ी, ऐसे मैंने बताया आपको, थोड़ी हायर होती है। अच्छा, सेम वे मशीनरी लोन वी आर टॉकिंग अबाउट, तो अनसिक्योर्ड मशीनरी लोन जो होगा, वो मशीन उसमें हाइपोथेकेट होती है, तो ये आप क्लासिफाई अनसिक्योर्ड में भी कर सकते हो, इसको सिक्योर्ड में भी कर सकते हो, बट इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वुड बी अराउंड अराउंड 9 to 10%, और सम बैंक्स टेक इट एज 11% ऑल्सो। So now I'm coming back on working capital limits. Any other question for anyone? Okay. प्राइसिंग को लेके है सचिन जी, एक बार तो मतलब ड्यूरिंग द सेशन, मतलब ये करंट प्राइसिंग आजकल जो बैंक्स, जो लिक्विडिटी पोजीशंस है बैंक्स की, तो उसके मुकाबले आजकल प्राइसिंग्स वगैरह पे थोड़ा ओके, प्राइसिंग जो प्राइसिंग आप ये जानना चाह रहे हैं कि प्राइसिंग कितना कितना ज्यादा आज की डेट में क्या प्राइसिंग चल रहा है, और कैसे हम उसको, ये क्या चैलेंज है, क्योंकि आरबीआई प्राइसिंग कम कर रहा है, बैंक्स प्राइसिंग कम नहीं कर रहे हैं, दैट्स यू वांट टू आस्क। सो प्राइसिग का यस एक्चुअली यस। एक्चुअली प्राइसिंग एक ऐसा, आज की डेट में अगर सबने सुना होगा तो रेपो रेट हैज बीन डिक्रीज इन 2 ट्रांचेस बाय 50 पैसा। सो कहीं ना कहीं प्राइसिंग कम हो रही है जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, बिकॉज आर, ये जो हमारा जितना भी सिस्टम है, जो वर्किंग कैपिटल लिमिट्स हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, होम लोन, दे आर लिंक्ड विद द रेपो रेपो रेट विद सम ऑफ द प्रॉफिट विच वी कॉल, बैंकिंग लैंग्वेज में उसे कहते हैं स्प्रेड। रेपो रेट प्लस स्प्रेड एक दिया होता है, उसके हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है। आज जो 2 साल पहले किसी क्लाइंट को कोई होम लोन 8.5 पर मिला, नाउ दैट लोन, दैट रेट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 50 पैसा, तो बैंक विल हैव टू रिड्यूस दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 50 पैसा। उसमें कोई बैंक मना नहीं कर सकता है। बट नाउ द प्रॉब्लम हैज कम अप, जहां नए क्लाइंट्स या वही क्लाइंट्स कुछ नया लेना चाह रहे हैं, उस
उस केस में बैंक्स दे, आज की डेट में वो 8.5 हैज बिकम 8% नाउ, बट वो 8% पे नए लोन्स नहीं दे रहा है कोई भी बैंक, बिकॉज देयर हैज बीन अ लिक्विडिटी इशू फॉर देम। और ये चीज आपने नोटिस भी करी होगी कि सारा पैसा मोस्टली सेविंग्स करंट अकाउंट से निकलकर म्यूचुअल फंड्स में जा चुका है, मार्केट में जा चुका है। सो वो कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है बैंक्स को टू गिव द स्मॉलर द इजियर रेट्स और द लोअर रेट्स। रीजन बिकॉज उनका जो प्रॉफिट है वो अल्टीमेटली आरबीआई हैज गवर्नड एवरीथिंग एंड उन्होंने एक डायरेक्शन दे दी, बैंक्स विल हैव टू फॉलो। बट नाउ बिकॉज बैंक इज ऑल्सो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन नॉट ऑनबोर्ड न्यू कस्टमर्स विद द सेम लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो कहीं ना कहीं चैलेंज आ रहे हैं। बट हाँ, मैं वैसे आपको बता देता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन्स के विल वेरी फ्रॉम 7.9% टू 8.5 और 8.6%। जहां तक बिजनेस लोन्स की बात आती है, वर्किंग कैपिटल लिमिट्स की या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वो वेरी करते हैं 8.75 से 9.5 तक। और अनसिक्योर्ड लोन एज आई टोल्ड यू 15% से 18%। now I'm coming back on working capital limits. वर्किंग कैपिटल लिमिट्स में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि कॉम्बो बनाकर एक पर्टिकुलर क्लाइंट को दिया जाता है। जनरली नॉर्मल ट्रेडर या तो वो ओवरड्राफ्ट लेता है या कैश क्रेडिट। जहां पर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर आ जाते हैं वहां पर वो लेटर ऑफ क्रेडिट आ जाएगा। बैंक गारंटी कम्स फॉर जनरली फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, जहां पर बैंक परफॉर्मेंस गारंटी देनी होती है। then export packing credit, then it's so export packing credit is basically a limit given to exporters, जहां पर उसे लो कॉस्ट फंडिंग फॉरेन करेंसी में मिल जाती है। और उसके बाद जब व्हेन दैट पर्सन सप्लाइज द गुड्स टू और एक्सपोर्ट्स द गुड्स, देन दिस लिमिट इज कन्वर्टेड इनटू पोस्ट शिपमेंट, दैट इज फॉर इन बिल डिस्काउंटिंग। Okay, just hold on. I think I have one question in chat box from Deepak Gupta ji. What is SBLC? So, SBLC, standby letter of credit, is basically nothing but a guarantee. Like जैसे बैंक गारंटी होती है, बैंक गारंटी वर्क्स इन डोमेस्टिक सिनेरियो, वहां पर SBLC वर्क्स इन अ इंटरनेशनल सिनेरियो। SBLC, the product where suppose you as a client goes to another, to your bank, and you want to you want to give some guarantee to a particular company from which you are either you are dealing, either you are importing some material or you are doing some work for that particular company, and where LC is not possible. So LC is also for import, but LC is involved in a product trading of a product internationally and nationally also. But in SBLC, where a product is not involved, only a work is getting done, and you want to give some deposit to a particular international entity, then in that case you will be issuing an SBLC for in favor of them. What is the possibility for a private limited company having a good turnover with zero debt, but director and shareholders have the civil issues, as proprietor concern of directors and shareholders have funding in CC and BL from NBFC? All BL from NBFC currently. Okay, I think this is a very long question. We can discuss in person also. But I will say, and legal proceeding, if CIBIL is not if CIBIL have any issues related to any shareholder or directors of a particular company, then in that case there are, so we will have to understand, if there is a return of intentional return of a particular loan, obviously we will not go ahead. If there is only a credit card issue in which क्रेडिट कार्ड का पता ही नहीं है आपको, बट कुछ चार्जेस लग गए, वो चार्जेस 5, 7, 10 हज़ार के हो गए और फिर आपको उसको राइट ऑफ कर दिया बैंक ने, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ, रादर यू आर गेटिंग कॉल्स और आप उसके ऊपर मेल लिख रहे थे, देन देर इज नो इश्यू, बिकॉज इन दैट केस हम लोग वो बैंक से बात करेंगे और उनको आपकी मेल्स दिखाएंगे भी जस्टिफाई कि हाँ ये छोटा अमाउंट है। In that case we can get it done. But if you are talking about any shareholder
और डायरेक्टर विच वाज इन्वॉल्व इन सम अर्लियर ट्रांजेक्शन, और वो हाँ डिफॉल्ट हुआ है, एनपीए हुआ है, then in that case banks do not go ahead in these kind of transactions for sure. सिबिल स्कोर कम है, एक आध दिन का, 2 दिन का डिले हुआ है, या मैं कह रहा हूँ हफ्ता भर भी डिले हुआ है फॉर सम रीजन, कि वो एक ईएमआई एक खाते से जा रही थी बट दे कुडंट ट्रांसफर इट टू इन दैट अकाउंट फ्रॉम अनदर अकाउंट, और उस अकाउंट में, दूसरे अकाउंट में बैलेंसेस पड़े थे, we can obviously speak to the bank and they will understand this also. Banks को तो अपने एक good clients का assessment करना होता है and they are interested in business also. But कहीं ना कहीं हमें ये समझाना पड़ता है. Now this is all about presentation. अगर आप present इस हिसाब से करोगे कि आपका क्लाइंट तो अच्छा है बट आपने प्रेजेंट ठीक नहीं किया, इन दैट केस दे विल नॉट अंडरस्टैंड, तो एक अच्छा क्लाइंट भी कहीं ना कहीं वो फंडिंग नहीं ले पाएगा. तो it all depends ki how you present that to your bankers. Now we have been doing this for ages. Every banker, their credit team, their sanction authority knows us by name, and in that case, obviously we have some, I would say, edge towards the sanctions of cases as compared to other our counterparts. Okay, so that was about this. Now working capital I have explained. अदर सिक्योर्ड लोन्स, ओके. अदर देन वर्किंग कैपिटल आपको मैंने बताया, होम लोन्स जो डायरेक्टर्स को दिया जाता है वो हम लोग करवाते हैं, चाहे डायरेक्टर्स की सैलरी कम है, चाहे कंपनी के प्रॉफिट्स कम है, बट टर्नओवर ठीक है. कैसे, मैं आई लेट यू नो अभी नेक्स्ट स्लाइड. प्रोजेक्ट फंडिंग, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इज अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोडक्ट, जहां पर कोई कवरेंट, कोई कंडीशंस नहीं होती हैं बैंक की. बैंक सिर्फ एक एक वन शॉट में एक लोन सैंक्शन करेगा, लोन डिसबर्स होगा, उसके बाद उसका ईएमआई स्टार्ट होगा, देन देयर आर नो अदर कंडीशंस रिमेन्स इन द लैप. देन देयर इज अ प्रोडक्ट कॉल्ड ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट. सो ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट क्या होता है? इट्स बेसिकली nothing but a lab loan only, but it works like an OD. यहाँ पर instead of opening a single account, loan account, there is another account which is opened in favor of the client, जहाँ पर वो उस उसके लोन से लिंक हो जाएगा. Now whatever amount which is kept in that particular account, that on that particular amount, the balances they will calculate, and on that those balances the interest will not be levied, and in that case they will have the benefit कि जितना पैसा हमारे एक अकाउंट में पड़ा रहेगा उतने पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा. कहीं ना कहीं ये बेनिफिट क्लाइंट को मिलेगा ही मिलेगा, बट डीएलओडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इट इज 0.5% हायर देन द लैप अमाउंट. तो कई क्लाइंट्स को सिर्फ और सिर्फ डीएलओडी चाहिए बिकॉज दे वांट टू सेव द इंटरेस्ट, और वो 50 पैसा ऊपर देने को तैयार है इन दैट केस. ओके, देन unsecured business loan I have already covered. क्रेडिट, सीजीटीएमएससी, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएसएमईज. तो सीजीटीएमएससी अब आई थिंक आप लोगों को सब पता होगा, अभी जो 5 करोड़ तक था, अब नाउ दैट हैज बीन इंक्रीज टू 10 सीआर. और इनफैक्ट जो डेफिनेशन है माइक्रो और स्मॉल, बिकॉज सीजीटीएमएससी ओनली कवर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, तो माइक्रो और स्मॉल की जो डेफिनेशन है दैट हैज आल्सो बीन इंक्रीज्ड, वाइडेंड फ्रॉम 50 करोड़ टू 100 करोड़. तो जिसके भी सीजीटीएमएससी चल रहे हैं जहां पर 50 करोड़ के बाद उनको एज पर पॉलिसी दे हैव टू गिव बैक देयर फंड्स टू द बैंक, दे हैव टू रिटर्न द लोन टू द बैंक. इन दैट केस नाउ दे कैन एंजॉय दिस रादर. जो 60-70 करोड़ की वाले भी हैं, दे कैन ऑल्सो थिंक ऑफ गेटिंग द लोन्स अप टू 10 सीआर. बट उसमें कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशन नॉर्म्स हैं और एलिजिबिलिटी calculations हैं, वो will that we can discuss if anybody wants in a later stage. So इसमें एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि सीजीटीएमएससी गारंटी देता है बैंक्स को अप टू 75% ऑफ द लोन अमाउंट. तो कहीं ना कहीं बैंक सिक्योर हो गया. एट द सेम टाइम सीजीटीएमएससी ने अपने उस लोन की को री इंश्योर कर इंश्योरेंस कंपनी. जो क्लाइंट है ही विल हैव टू शेल आउट a fees from 0.337 to 1.2 on the loan, depending upon कि वो किस स्लैब में आता है.
तो कहीं ना कहीं ये एडिशनल कॉस्ट है क्लाइंट के लिए। एवरीबडी वांट्स कि सीजीटीएमएससी मिले, बट सीजीटीएमएससी की कॉस्ट 11 to 12% तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, प्लस बैंक अपनी फीस अलग लेता है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट अपनी फीस अलग लेगा, उसके बाद सीजीटीएमएससी अपनी इंश्योरेंस फीस अलग लेगा, तो कहीं ना कहीं दिस गोज टू 15%। तो दिखने में ये इजी है, सस्ता है, बट एक्चुअल में इसकी फंडिंग एक अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन की तरह का कॉस्टिंग आ जाता है। नाउ आई एम कमिंग ऑन टू द मेथड। सो व्हाई आई एम कमिंग ऑन टू दिस, बिकॉज हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो एक नॉर्मल बैंक्स जो बोलते हैं, ओके व्हाट आर द क्वेश्चंस, जस्ट होल्ड, आई एम कमिंग ऑन टू द क्वेश्चंस। पार्टनरशिप, ओके जस्ट होल्ड, पार्टनरशिप में प्रॉफिट्स कम है बट टर्नओवर हाई है, देन ऑन टर्नओवर बेसिस लोन हो सकते हैं क्या? यस, वी कैन डू दैट। इनफैक्ट आई एम कमिंग ऑन टू दिस ओनली। ये जो मैं प्रोडक्ट्स आपको बता रहा हूँ वो इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये जनरली हम लोगों को इतना पता है कि जो प्रॉफिट है वो काउंट होगा, और कईयों को इतना पता है कि वो कैश प्रॉफिट है, उस बेसिस पर हम देखते हैं कि कितना लोन बैठता है। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो शायद बैंकर्स ऑल्सो दे डोंट नो। फॉरगेट अबाउट द सीएस, बिकॉज सीएस आर फोकस्ड ऑन देयर preparing balance sheets and audit and everything. Bankers तक को ये प्रोडक्ट्स नहीं पता है। So I'll throw some light on this also. Are there capital subsidy also in setting up a new unit or any government subsidy? How big is the board? Okay, capital subsidy और इसके लिए, because this is not a session I have kept for this, but yes, capital subsidy में जो units किसी किसी states में भी मिलती है, but I would say that we are not the subject matter expert on providing subsidy to the clients. They are the, but yes, we know we can get that connected. We are in touch with them, but we do not deal with them. Then okay, I'm coming back here. सो एक तो ये नॉर्मल मेथड हो गया जिसमें नेट प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन एड बैक होता है, इंटरेस्ट होता है, सैलरीज जो डायरेक्टर्स पार्टनर्स को दी हैं, और एनी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू रेकरिंग और नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। सो वी कॉल इट एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। अब आते हैं सरोगेट प्रोडक्ट्स। तो जहां पर ये चीज ध्यान से सुनने वाली है, जहां पर आपके नॉर्मल प्रोडक्ट्स, ऑब्वियसली बात है 90% केसेस में एमएसएमई को टैक्स से नीचे ही दिखाने हैं अपने प्रॉफिट्स, फॉर वट एवर रीजन, एवरीबडी नोज दिस। तो वहां पर बट उनकी टर्नओवर तो पूरी होगी, बिकॉज टर्नओवर इज कैप्चर्ड इन जीएसटी। तो अगर वो टर्नओवर उनकी सफिशिएंट, सो यहाँ पर जहां पर प्रॉफिट कम हुआ, वहां पर एक मेथड होता है बैंक्स का, ग्रॉस प्रॉफिट मेथड। सपोज देयर इज अ फैक्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अब उनके नेट प्रॉफिट तो होंगे 0.1%, बट देयर ग्रॉस प्रॉफिट मेथड, देयर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में भी 5%, 10%, 15%, 20% ऑल्सो, क्योंकि वो कई खर्चे उनके बिलो द लाइन आते हैं जो पीएनएल में होते हैं, ट्रेडिंग में नहीं होते हैं। देन इन दैट केस कई बैंक्स सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट के बेसिस पर आपको लोन दे देंगे, इररिस्पेक्टिव उसका नेट प्रॉफिट कम हो। बट वो आप कोई भी जब अप्लाई करेगा उसको वो मेथड डिफाइन करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। सपोज एक क्लाइंट ने अप्लाई किया लोन डायरेक्टली इन अ बैंक, वो किसी ने कोई बात नहीं की, नो बडी नोज अबाउट दीज प्रोडक्ट्स। इन दैट केस सडनली 1 महीने या 10 दिन बाद उसका आ गया कि आपका लोन नहीं हो पाया बिकॉज आपका नेट प्रॉफिट कम था। Now they cannot apply again in a gross profit method. So we will have to identify these methods at the start of the file initiation in a bank. तो वहां कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट काम आते हैं, जो बैंकर को बताते हैं कि यू हैव टू पुट दिस केस इन अ पर्टिकुलर मेथड, जहां पर जो चीज जो आपको वो हम लोग और हमारे जैसे कई भाई जो फाइनेंस की फील्ड में हैं, वो एक सीएमए, एक कैम पूरा बैंक की पॉलिसीज के हिसाब से बनाते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं विच बैंक एंड विच प्रोडक्ट नीड्स टू बी गिवन टू दिस पर्टिकुलर क्लाइंट।
सिमिलरली एक मेथड होता है ग्रॉस जीएसटी टर्नओवर मेथड, जहां पर टर्नओवर के बेसिस पर ग्रॉस प्रॉफिट भी सुपोजिटली लोअर है, इन दैट केस या एम आई ऑडिबल? आई थिंक डिस्कनेक्ट हुआ था। Yes. Now. सो बैंकिंग टर्नओवर में जहां जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, वी विल टेक बैंकिंग टर्नओवर फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट ओनली, लाइक स्कूल और पब्लिशिंग हाउस। देन then again this surrogate products continued, where we in fact not only this, we take I would say liquid income also, जहां पर कच्चे का काम है क्लाइंट का, हम उसको भी कहीं ना कहीं काउंट करवा देते हैं लोन की एलिजिबिलिटी में। अब ये हर बैंक नहीं करता है, बट वी नो दैट कौन से बैंक करते हैं और किस सिचुएशन में करते हैं, किस क्लाइंट के लिए करते हैं। सेम वे आपके एवरेज बैलेंसेस जो आपके करंट अकाउंट में होंगे, वो कहीं ना कहीं डिराइव करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी, चाहे आपका प्रॉफिट कम हो। ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जहां पर आपका प्रॉफिट भी कम है, आपका टर्नओवर भी कम है, आपके पास कच्चे का भी काम नहीं है, देन इन दैट केस अगर कोई आपका एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है और 18 महीने 12 महीने से वो बिल्कुल क्लीन है ट्रैक रिकॉर्ड, इन दैट केस वी विल गेट दैट बीटी टू अनदर बैंक, एंड वी विल ऑल्सो एनहांस इट बाय 20 to 30%। तो वहां कोई एलिजिबिलिटी ही नहीं देखी जाएगी, बट अगेन द स्पेशलिस्ट नोज कि कैसे करना है और कौन से बैंक में करना है। then we are on, so it is just a slide to talk about the difference between overdraft and CC। कई लोग सीसी के लिए ही सीसी चाहिए, कई लोग कहते हैं हमें ओवरड्राफ्ट चाहिए। सो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि कहाँ पर कैसे किस सेंस, कैन यू होल्ड फॉर अ मोमेंट जस्ट। या सो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि आपको सीसी चाहिए, रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर एक 5 करोड़ तक की, जनरली ओवरड्राफ्ट 5 करोड़ तक दी जाती है, अगर हमें 5 करोड़ तक की लिमिट चाहिए तो वी विल ट्राई कि हम ओवरड्राफ्ट ही दें, बैंक्स विल ट्राई कि सीसी दें। उसका रीजन ये है कि बैंक को मैक्सिमम चार्ज ऑन करेंट एसेट्स दे रिक्वायर इट। तो कहीं ना कहीं वो करेंट एसेट चार्ज हमेशा कैश क्रेडिट में आता है, ओवरड्राफ्ट में नहीं आता है। तो हमें एक इजी इजी गोइंग बैंकिंग रखनी है अपने क्लाइंट की, ना कि प्रॉब्लम भरी। क्योंकि अगर हम सीसी चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक एंड बुक डेट स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। जिस दिन स्टॉक एंड बुक डेट स्टेटमेंट में आपका एलिजिबिलिटी थोड़ी भी कम होगी, आपकी लिमिट ड्रॉप हो जाएगी। तो वी नो इनफैक्ट हम लोग कॉम्बो भी देते हैं, ओवरड्राफ्ट और सीसी, ओवरड्राफ्ट पर प्लस ड्रॉप लाइन ओवरड्राफ्ट। तो कहीं ना कहीं हम उसकी स्ट्रक्चरिंग करते हैं, उसको एक सॉल्यूशन देते हैं, रादर देन किसी एक बैंक में जाके जो बैंक ने दिया वो ले लिया। जनरली आई थिंक मोर देन 60-70% ऑफ द क्लाइंट डजंट नो कि उन्हें चाहिए क्या, और जब बैंक सैंक्शन करेगा उसके बाद क्या इश्यूज आएंगे। वी एज अ प्रोफेशनल्स रीड ईच एंड एवरी क्लॉज ऑफ द सैंक्शन लेटर एंड द अदर डॉक्यूमेंट्स, जो शायद एक नॉर्मल क्लाइंट नहीं पढ़ते हैं। तो वहां कहीं ना कहीं हमारी एक्सपर्टीज काम आती है। सो दिस इज द कैश क्रेडिट असेसमेंट। ये नॉर्मल मैंने एक असेसमेंट डाला है जनरली टू हैव अ व्यू कि कुछ कुछ टर्नओवर मेथड होता है अप टू 5 करोड़ तक, जहां टर्नओवर का 20% दिया जाता है। फिर देन देयर इज अ मेथड परमिसिबल बैंक फाइनेंस। ये बेसिकली जो ऑलमोस्ट बैंक्स यूज करते हैं, बट अगेन आई वुड से बैंक्स
the RBI recommendations are only recommendatory nature. They are not binding on banks. RBI ने free hand दिया है banks को to understand and assess the requirement and the underwriting कि वो Excuse किस me, sir. Yes, Rajni ma'am. Hi, good evening. Sorry for the interrupt. Sir, PPT is not showing. Okay, just hold on. It's not showing. Can you see this? Yes, sir. Now PPT is showing. Okay. So, assessment. So, assessment के लिए बैंक्स को फ्री हैंड दिया हुआ है. बैंक्स नीड्स टू डिसाइड कौन से क्लाइंट का क्या असेसमेंट करना है. तो जनरली हम लोग जनरलाइज कर लेते हैं चीजों को कि इस मेथड से होगा, बट यस वी शुड नो कि हमें किस मेथड से, एटलीस्ट वी शुड नो सो दैट वी कैन इंटरैक्ट विद द बैंकर कि आप इतना नहीं इतना लिमिट दीजिए, इसको इतना लोन नहीं बल्कि एक्स नहीं X+2 दीजिए, राइट. सो ये अलग अलग तरह की असेसमेंट्स होती हैं कि हर प्रोडक्ट की अलग अलग होती हैं. बैंक गारंटी टाइप्स अलग होते हैं, लाइक प्रिंसिपल, डेटर, गारंटर, क्रेडिटर. सो दिस आई हैव जस्ट गिवन फॉर टू हैव अ व्यू फॉर ऑल यू गाइस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. गारंटीज भी दो तरह की होंगी, एक परफॉर्मेंस, एक फाइनेंशियल गारंटी. परफॉर्मेंस गारंटी होती है जहां पर एक कॉन्ट्रैक्टर, सपोज इन अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसको कहीं ना कहीं वो गारंटी देनी पड़ती है टू टेक दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड देन उसके बाद उसको आगे एग्जीक्यूट करने के लिए. फाइनेंशियल गारंटी होती है जहां पर आपको गारंटी देनी होती है एज एन डिपॉजिट मनी. इंस्टेड ऑफ डिपॉजिट मनी आप उसे गारंटी दे रहे हैं कि अगर हम लोग जनरली ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को देना होता है टू देयर प्रिंसिपल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी. टर्म लोन असेसमेंट इज अगेन अ DSCR और EBITDA बेस्ड assessment. I think that was all from my side. This was just a small PPT so that at least you should know what kind of products which a private banks can do in a larger perspective. हमें सिर्फ यही पता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स करते हैं और वो ये सारी चीजें कर लेते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर नाउ वेरी एग्रेसिव एंड दे आर डूइंग मच मच हायर टिकट साइज लोन्स. और वो स्ट्रक्चर करते हैं कहीं ना कहीं, इवन इवन द प्रॉफिट इज लोअर, इवन द टर्नओवर इज लोअर, इवन द द वाइट income, I would say the white turnover is not that much, but कच्चे वाला income is higher, then also we can give. So कहीं ना कहीं जहाँ स्ट्रक्चरिंग इन्वॉल्व होती है वहाँ हम लोग काम आते हैं. Thank you so much for this, and I would invite any questions from anyone who would want to ask. Yeah, Sachin sir, I'm Samit Gupta. So, sorry, I late joined by 30-40 minutes. So, can you make available the PPT and recording to some server so that we can go through it Yes. again? Yes, I think that can be shared by Chawla ji's office. That there should not be any problem on that. In fact, my number is also written over here. In any issue or anything you would want to understand in person, also so you can call me anytime. Okay, thank you so much. So one more question is there in the chat box. Okay, I'm just looking into the chat box only. Can we take adjusted TOL in case TOL and AT&W is exceeding the benchmark? Can we take adjusted TOL? Okay, so when we are talking about adjusted TOL means, see, we always take adjusted TOL because there are, so we understand, everybody should understand TOL. TOL is total outside liabilities. So generally banks ये जो total outside liabilities होती हैं और जो tangible net worth होती है, ये tangible भी adjusted tangible होती है. Now I couldn't understand adjusted word.
सो एडजस्टेड में किस में एडजस्ट होगा, क्योंकि एडजस्टेड टेंजिबल नेटवर्थ होता है जहां आपको आपका पैसा, यू हैव टेकन सम मनी फ्रॉम योर फ्रेंड्स और फैमिली विच वुड बी treated as a cost equity, and you have given some of the loans which to friends and family that would be adjusted from AT&W, from tangible net worth. तो supposedly आज आज हमारी 100 रुपीज की TNW है, विच इज कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। हमने 10 रुपीज लिए हुए हैं अपनी फ्रेंड एंड फैमिली से, सो 100 + 10 इज 110। लेकिन हमने 20 रुपए दिए भी हुए हैं बाहर किसी और फैमिली फ्रेंड में, या किसी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है किसी प्रॉपर्टी में विच इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। इन दैट केस हमारी AT&W, एडजस्टेबल टेंजिबल नेटवर्थ, वुड बी 90 रुपीज। 100 + 10 - 20, ये तो हो गया एडजस्टेड टेंजिबल नेटवर्थ। आई कुड अंडरस्टैंड एडजस्टेड TOL, एडजस्टेड टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज। तो अगर वो आप बता पाए, जिसने भी ये क्वेश्चन लिखा है, तो मैं बता पाऊंगा कि हम कैसे करते हैं। Can we get loans or OD for liquor business clients? Yes, we can do that. That's not an issue. Okay, point is clear. It's adjusted TNW only. ठीक है, thanks, Nikhil. Uh, Anything else? I think Anupa ma'am, can't they speak? I mean, they have the right only to write in the chat box or what? No, sir, they can unmute themselves and they can ask also. अच्छा, okay. HDFC वाला मना कर देता है वो लिक्वर के लिए, अगेन बिकॉज वो HDFC है ना, कई और बैंक्स भी हैं। दैट इज द रीजन आई एम सेइंग दैट वी आर द वंस। हर बैंक की अपनी अलग पॉलिसी होती है, हर बैंक के एक कॉशियस इंडस्ट्री लिस्ट होती है। किसी बैंक को अपनी बुक बिल्डिंग करनी है तो वो ज्वेलरी सेगमेंट को भी करेगा, वो कंस्ट्रक्ट रियल एस्टेट में भी करेगा, वो आपके लिकर बिजनेस को भी करेगा। किसी बैंक को बुक बिल्डिंग नहीं करनी है तो उसने अपनी ऑलरेडी बुक बढ़ी हुई है, नाउ दे वांट टू बी ट्रेड वेरी कॉशियसली कि नहीं, अब हमारा ऑलरेडी जो हमारे टारगेट्स हैं दैट हैव बीन अचीव्ड, डेफिनेटली दे विल इंटरप्ट एंड दे विल से कि नहीं अब हम नहीं कर सकते हैं बिकॉज दिस इज द लिक्वर बिजनेस। सो it depends on bank to bank and it also depends on business to business. कोई liquor business is a रोड साइड शॉप होगी, कोई होगा जो बियर मैन्युफैक्चरिंग ब्यूरी है, तो डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल्स के बेस पे होगा। इट इज नॉट दैट कि HDFC नहीं करेगा तो बाकी लोग नहीं करेंगे। CGTMSE can be availed by service provider also or any trader manufacturer. CGTMSE can be availed by service provider also. Yes, बिल्कुल हो सकता है, provided CGTMSE में उसकी ड्राइंग पावर। सो जब हम बात करते हैं सर्विस प्रोवाइडर की, तो सर्विस प्रोवाइडर में जनरली प्रोडक्ट्स आर नॉट इन्वॉल्व, सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं। दैट मीन्स देयर इन्वेंट्री विल नॉट बी देयर, या बहुत कोई छोटी इन्वेंट्री होगी, लेकिन उनके जो डेटर्स होंगे उनकी फंडिंग के लिए हम CGTMSE कर सकते हैं। अगर डेटर्स ही उनके ऐसे हैं जो 90 डेज के डेटर हैं, 100 CR की कोई टर्नओवर, एंड दे हैव अ डेटर्स ऑफ लाइक सिक्योरिटी एजेंसीज आर देयर, जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, ऑल्दो इट्स अ नेगेटिव प्रोफाइल फॉर द बैंक्स, बट बैंक्स करते हैं। और आपके HDFC ने ही दिया भी हुआ है ये, जब जिसने भी HDFC का पॉइंट डाला हुआ है, तो उनका डेटर्स 25 करोड़ का हुआ फॉर एग्जाम्पल, 90 डेज डेटर्स के हिसाब से 25 करोड़ में वो ड्राइंग पावर देखते हैं 75% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द डेटर्स एंड स्टॉक। तो उसका अगर वो बैठता होगा, डेफिनेटली दे विल डू इट। कहीं भी सर्विस प्रोवाइडर के लिए CGTMSE मना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आजकल तो सर्विस प्रोवाइडिंग ही फर्म्स ही हैं जो ड्राइव कर रही हैं इकोनॉमी को। I think if anybody has any other question, they can put in, or should I wind up the meeting? If anybody wants to ask separately also for any of the things, rather we I would say that we would be happy to collaborate with all of you. कई चीजें ऐसी जो शायद CA को नहीं पता है,
एज एन ऑडिटर, बट हम लोगों को पता है वी आर स्पेशलिस्ट फॉर दैट. सो वी कैन, या विकास, यू कैन आस्क एनीथिंग यू वांट टू आस्क. या है सचिन, मैं जस्ट ये चेक कर रहा था कि हाउ बिग पॉकेट इज आल्सो सपोर्टिंग इन लाइक कंपनी इन्वेस्टमेंट्स आल्सो, लाइक मैनेजिंग द कॉर्पोरेट फंड्स. Yes, we are into investment side also. I haven't taken up the investment part because this was the PPT was, or the session was purely for loans through private banks. So that was the reason I didn't take up the investment side. But yes, we have a specialist of wealth also who takes care of all the wealth of a particular client. Rather, we do have a very high portfolio with us for all our clients who are dealing with us. Anybody who would be interested, yes, they can come to us and ask for the investment side also. Sir, we want to do this work. Thanks. How we can enter into this field? Can we contact with you or your team? Because we are not in this line previously. I think, Parulji, maximum CAs are not in this line. But so what I can suggest you is you can call me or you can WhatsApp me. We will connect you for sure. We both of us can meet either at our office, at your office, and then we can discuss how you can go ahead. क्योंकि आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपनी स्क्रॉलिंग करनी है अपने क्लाइंट्स की. जितने भी क्लाइंट्स आप मैनेज कर रहे हैं, जो भी सीएज हैं, उनकी आप यू मस्ट बी हैविंग योर बैलेंस, देयर बैलेंस शीट्स. आपने एक एक्सेल में अपना उनके नाम और उनका डेटा, उनका डेट बनाना है कि हाउ मच डेट दे आर अवेलिंग, हाउ मच पर्सनल डेट लाइक होम लोन दे आर अवेलिंग, हाउ मच unsecured loans they are availing. And then you can speak to them on this, and trust me, we will go and connect the client, and we will I would say give comfort to the client about their issues which they are facing in the with the banks, जो कि जनरली टाइमलाइन से रिलेटेड होता है, चाहे वो उनको एनहांसमेंट चाहिए हो, चाहे उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट. सो या पंकज जी, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग. हाँ जी सर, ये जनरली क्लाइंट पूछते हैं कि प्राइवेट बैंक से लोन लेना बेटर है या पीएसयू बैंक से, तो उसमें क्या सजेस्ट करना चाहिए उनको? पंकज जी, 500 रुपए का नोट तो 500 का, चाहे सरकारी बैंक का हो या प्राइवेट का हो, 500 में ही चलेगा. बिल्कुल ठीक है. और जहां तक ये बात आती है कि अननेसेसरी चार्जेस वाला इशू, जो शायद 90% बैंक में क्लाइंट्स को रहता है कि जी अननेसेसरी चार्जेस ना लगा दें प्राइवेट बैंक्स, तो मैं हाँ आपको जी. बताना चाहूंगा दैट वी आर इन विद द प्राइवेट बैंक्स फॉर ऑलमोस्ट 20 years, राइट. ओके. आज एंड वी आर डूइंग आवर ओन सिंस पास्ट 12 years. तो अगर एंड वी आर ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 50% विद फॉर आवर बुक, इन आवर बुक. तो कहीं ना ओके. कहीं हमें ये पता है कि सरकारी बैंक ज्यादा चार्जेस लगाते हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक्स. ओके. मतलब आई एम नॉट मैं किसी की रेपुटेशन के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, बट आई अंडरस्टूड. जनरली. तो अगर हम सो व्हाई वी आर ग्रोइंग, बिकॉज वी नो दैट द प्राइवेट बैंक्स आर चार्जिंग, नॉट चार्जिंग अ hefty अमाउंट, रादर दे आर एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. इनफैक्ट वो पेनल्टी हम शायद वेव भी करवा देते हैं. कितनी बार ऐसा हुआ है, दे हैव चार्ज foreclosure charges. We have gone to the RBI and we have ओके. got them removed and reversed for almost 10 of our clients. अगर वो 15 क्लाइंटों को हुआ है तो 10-12 को हमने रिमूव करवाए हैं. ओके सर. तो दैट्स वाई मैंने अपनी पिच में बोला था, जो अब मैं अभी बात कर रहा था, वी हैव अ डेडिकेटेड सर्विस टीम फॉर दिस, जो खाली ओके. सैंक्शन और डिसबर्स नहीं कराती है. वी वर्क लाइक अ वर्चुअल बैंकर फॉर देम. हमें हर चीज का पता है, क्लाइंट कहाँ पर इशू आ रहा है, बिकॉज वी टॉक टू देम ऑन अ डेली बेसिस और अ वीकली बेसिस. ओके. राइट. थैंक यू सर. थैंक Yeah. Sir, I am from Ahmedabad. Do you provide service in Ahmedabad? So we are present in Delhi, NCR, Gurgaon, and Noida. We can obviously, Ahmedabad is a big city. We know pan India credit team, business teams, and we can get the case done also in Ahmedabad. But as of now, our office is based out in Delhi only. Sachin ji,
say usually sometimes a customer loan because of some situation, private bank decline usually. So they Sorry, were, I couldn't get you. Can you come again? yeah. So my voice is clear. Yeah, now clear. Yeah. I'm saying that sometimes due to some their background or their financial is not so good, so few banks, mostly private and some POCs, can bank usually decline the sanction of loan. But where there could be possibility that NBFC, because of they can compromise some condition, they can grant a loan on some higher interest or something. It is usually happen, I believe. समित जी बिल्कुल सही। आप सही कह रहे हैं। जहाँ सिर्फ इट मे सो हैपन, पहले तो हम लोग ट्राई ये करते हैं कि जितने भी क्लाइंट्स हैं, हम 80 to 85% वी जनरली कवर इन द बैंकिंग सिस्टम ओनली। Yes. वो चाहे वो प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम, राइट। लेकिन अगर कोई ऐसा क्लाइंट है, लाइक यू आर सेइंग दैट उनका फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी का कुछ इशू है, और इतना इशू है कि वो बैंक्स नॉर्मल अपने सैरोगेट प्रोडक्ट्स में भी नहीं दे पा रहे हैं, इन दैट केस डेफिनेटली वी आर आल्सो ऑन द पैनल ऑफ ऑल द एनबीएफसीज, Mm-hmm. beat Tata, beat Aditya Birla, beat Godrej, all the NBFCs. So we are also dealing with them, and yes, that case goes to the NBFC. So in fact, I'll tell you, once we will have the financials and the CIBIL of a particular client, we will do some jugglery, some calculations which is within internal to us, and we will let you know कि इस क्लाइंट के फेस के ऊपर कौन से बैंक का नाम लिखा है। दिस फाइल बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर बैंक और एन एनबीएफसी। it takes us maximum 3 to 4 days to go into in depth। बट हाँ, कहीं ना कहीं जहाँ बैंक क्लाइंट आप हमें दे रहे होंगे, वहाँ आपको पता ही होगा कि किस क्या पेन पॉइंट है उस क्लाइंट का, एंड अकॉर्डिंगली वी विल Yes. गिव यू एंड वी विल एडवाइज यू विच एनबीएफसी शुड गो टू। Okay, and so you are dealing with, you are say DSA for all most of NBFC as well as banks. All the, yes, most 90% of the NBFCs and all the banks। Okay. Yeah। Okay. So there is a one more question. Maybe there was a, as of now that last 3 or 4 years, so there's a P2P platform is also growing, where usually that there's a some platform which is approved by the RBI, or they claim that they have taken the license. So what they are take they are inviting a person who can give a loan. Say they are creating a one big pool, and they are extending this loan to some company on the basis of the monthly AMI or something. So can you let us know that you are dealing with them also, or just it is a just knowledge purpose that what they are working, whether they are correct or not? मिस्टर गुप्ता, इसमें आई टेल यू, जो सो यू आर टॉकिंग अबाउट फिनटेक्स, राइट। Yeah, ये yeah. ये जो फिनटेक्स हैं, दे डेफिनेटली आर द टॉक ऑफ द टाउन। और कितने ही लोग यहाँ पर जाके अपने लोन्स अप्रूव करवाते हैं, डिसबर्स करवाते हैं, बट आई टेल यू, फर्स्टली वी आर नॉट इनटू दिस। व्हाई वी आर नॉट इनटू दिस, आई टेल यू, वी हैव आवर क्लाइंट बेस जो मेजरली दे वांट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। Yeah. अब जो जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी जो फंडिंग होगी, दे वुड बी ओनली से 10 lakhs, 15 lakhs, 5 lakhs, 20 lakhs, 25 lakhs, और Correct, उनका correct, रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी मच मच हायर देन अ correct, नॉर्मल बैंक। correct, sir. So everybody, see, everybody will have to select something or the other. No one can be the master of everything. Correct, sir. We are not into fintech kind of a business. We are purely into debt syndication, and the debt size may be as large as 200 crore and as low as 1 CR or 50 lakhs also. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Anupma ji, shall I wait, or shall I wind up, because now I think everybody has asked the questions they wanted.
Yes, sir, we can wind up if nobody has any Yeah, questions. and one last question, Sachin ji. I'm sorry, I'm disturbing you again. No, It's no, that's okay, okay. no No issue. issue. Sir, you are you are expedition in loan. So, do you also doing a funding through IPO, or you are also involved in IPOs, sir? No, we are not involved in IPOs. Yes, we have our one of our partner is there. We can get that connected if you have any issue. But largely we deal with the debts only, Okay, okay, sir. loans only. Okay, sir. One more question, sir. Yes, ma'am. Yeah, are most of the clients have already bank OD limits? If we want to shift them, then what? How can we approach saying lower limits? Higher limits or lower rate of interest like this. पारुल जी, आई टेल यू, जहां पर आपकी बात आती है कि कैसे अप्रोच करना है, यू वांट टू से कि मैं अपने क्लाइंट से कैसे बात करूं कि क्या आप मैं दूसरी जगह बीटी करवाऊं, राइट? Yes, yes. So it's simple. You can get us connected with them. Both of us will go and meet, and we'll explain them कि क्या क्या ऐसा issues हैं. See, we are the doctors of a particular disease. हम जब मरीज के पास बैठेंगे तो वो अपने आप सारी चीजें बताएगा हमें. Probably he may not disclose it to you, but we are the one Yes, sir. who will identify कि ये क्या इश्यूज इनको आ रहे हैं एंड क्या कैसे ये इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं. वो इश्यूज जरूरी नहीं है बैंक चेंज करके ही हो. वो इश्यूज उस बैंक के अंदर भी रिजॉल्व हो सकते हैं और वो इश्यूज बैंक चेंज करने के बाद भी हो सकते हैं दूसरे बैंक में. Hmm. इनफैक्ट मैं आपको Okay, sir. बताता हूँ, इन अगर वंस यू विल, ओके, दिस इज फॉर ऑल द आर सीए भाईज एंड जितने भी लोग हैं. अगर आपको ये लगता है कि यू नीड एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न रेवेन्यू आउट ऑफ दिस स्ट्रीम, तो जरूरी नहीं है कि आपको अपने क्लाइंट को बोलना ही बोलना है कि आप ये चेंज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते बैंक, या आपका क्या लिमिट चल रहा है या लोन क्या. आपने सिर्फ एक मीटिंग करवानी है. I myself or my colleague can go and meet the client, and we will definitely crack any of the deals. चाहे वो फिर होम लोन की डील होगी, चाहे वो लैब की होगी, चाहे अनसिक्योर्ड लोन की होगी या वर्किंग कैपिटल की होगी. एक बार आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू आइडेंटिफाई देयर द क्लाइंट्स जो आपके बहुत नजदीक हैं, क्लोज हैं, एंड दे विल अंडरस्टैंड एंड दे विल एग्री जो भी चीज आप बोलेंगे. देन इन दैट केस वो मीटिंग एक आप हमारी करा देंगे. वी विल डेफिनेटली कन्विंस देम ऑन समथिंग और द अदर बेसिस द इशू दे विल एक्सप्लेन टू अस. Okay, sir. Yeah, I think thank you everyone. Thank you Anupma for coordinating this, and thanks Vikas also from my team to have this organized, and thanks Raj Chavla ji for this webinar. I think Anupma, I'm disconnecting it. Sure, Is sir. it? Yeah. And anyone can approach to me at my number, which is visible on the screen, I guess. Thank you so much. Thanks all for attending and giving time to me for this. Thank you. Thank you, sir. Thank you.